اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک 1 لیسن 1 انشاءاللہ ہم لوگ نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ بک 1 میں نے پہلے بھی پڑھائی تھی لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، انشاءاللہ نئی ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مدینہ بکس اور بک 1 کے چیپٹر نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ کچھ میں آپ کو 2-4 بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں شروع کرنے سے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ لیسن شروع کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ عربک میں جملے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ جملے جو ہیں 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے الجملۃ الاسمیۃ، پھر دوسرا ہے آپ کا الجملۃ الفعلیۃ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں ھذا کتاب، تو یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، اس میں ھذا بھی اسم ہے اور کتاب بھی اسم ہے۔ لیکن اگر میں کہوں ضرب زید، یعنی ضرب مطلب ہوتا ہے ہٹ، زید ہٹ، لیکن کیونکہ ہٹ جو ہے مارا، زید نے مارا کیونکہ پہلے آ رہا ہے، جملہ جو ہے فعلیہ ہوگا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہو گئی کہ جملے 2 طریقے کے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ بک 1 میں ہم لوگ پرائمریلی الجملۃ الاسمیہ تو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بک 2 اور بک 3 میں جملہ فعلیہ وغیرہ آئیں گے۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جملوں میں ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک؟ مثال کے طور پہ کتاب کا مطلب ہے بک۔ اب عربک میں کتاب کے جو ہیں موڈز ہوتے ہیں، تو ہم 3 موڈز بتائیں گے۔ ایک ہے نارمل موڈ، اور پھر یہ ہے کہ موڈ چینج ہو جائے گا، کہ 2 موڈ چینج ہوں گے، تو ہم اس کو ایسا کریں گے کہ فیس ایکسپریشن سے بیان کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ نارمل موڈ ہے، اور ایک اداسی کا موڈ ہے، اپسیٹ موڈ، اور ایک آپ کا خوشی کا موڈ ہے، ہیپی، ٹھیک ہے۔ نارمل موڈ میں جو ورڈز ہوں گے اس کے اوپر دمہ آئے گا یا پیش آئے گا، جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نارمل ورڈز میں یا نارمل موڈ میں پیش آئے گا سب ورڈز کے اوپر۔ کتاب، محمد، جتنے بھی اسم ہیں، ناؤنز ہیں، کامن ناؤن ہو یا پراپر ناؤن ہو، عام طور پہ اس میں پیش آئیں گے نارمل موڈ میں۔ اب آدمی اداس کب ہوتا ہے، اپسیٹ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر کوئی ایکشن کیا جائے، کسی نے کچھ بری بات کہہ دی تو موڈ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کتاب کو کسی نے اپسیٹ کر دیا، انا نے اپسیٹ کر دیا، تو یہ بن جائے گا ان کتابن، ٹھیک ہے۔ انڈیڈ اے بک، انا کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ جو نارمل موڈ تھا وہ تو پیش تھا، لیکن اس ناؤن کا، اس اسم کا جو موڈ تھا، کسی ورڈ کے آنے کی وجہ سے موڈ چینج ہو گیا، وہ پیش سے زبر بن گیا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی اور مثالیں دیکھیں گے لیسنز میں، لیکن میں آپ کو کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں فی الحال۔ تو ان کتابن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے سورۃ العصر میں والعصر
इन्नल इंसाना, इन्नल इंसाना। देखिए अब क्या हुआ कि इंसानू था ये ओरिजिनली, जो नॉर्मल मूड था इसका था अल इंसानू, ठीक है ना, नॉर्मल मूड था। अब क्या हुआ, इन्ना आ गया। से पहले इन्ना क्या करता है, अपसेट कर देता है, मूड खराब कर देता है, ये मूड चेंज कर देता है। तो क्या होगा, इन्नल इंसाना, इंडीड इंसान खसारे में, ठीक है। इसी तरह से अब खुशी का मूड है। कैसे खुशी होगी, कोई अमल होगा पीछे, कोई चीज़ आएगी जो मूड को बदल देगी। मिसाल के तौर पे किताब था, उससे पहले आ गया फी, तो ये किताबुन से बन जाएगा किताबिन, मूड चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने समझ लिया कि इस्म के 3 मूड्स होते हैं जनरली, एक नॉर्मल मूड और 2 मूड्स हैं जब वो आदमी का मूड चेंज हो जाता है। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसके टेक्निकल टर्म्स हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि वर्ड होता है, उसके मूड्स होते हैं, वो मूड्स किसी चीज़ के आने की वजह से वो मूड बदल जाते हैं। फ़िलहाल सिर्फ इतनी बात समझने की। चलिए अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, अरबिक में इज़ नहीं होता, आ एन वगैरह भी नहीं होता, ठीक है ना। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे मुझे कहना है दिस इज़ अ बुक, ठीक है ना। अब अरबी में हम किस तरह कहेंगे, दिस हो गया हादा और किताब हो गया बुक, और क्योंकि आगे पीछे कोई मूड चेंजर नहीं है उसका, तो ये नॉर्मल मूड में होगा किताबुन, तो दिस बुक। अच्छा अब क्या होता है कि जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मुब्तदा, दूसरा पार्ट होता है खबर, इंफॉर्मेशन उसके बारे में। यानी मुब्तदा है सब्जेक्ट, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, और इंफॉर्मेशन है कि क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, दिस, ठीक है ना, और क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके बारे में, दिस इज़ अ बुक। अब देखिए अरबिक में हम क्या करेंगे कि हम बॉक्स मेथड को यूज़ करेंगे। बॉक्स मेथड का मतलब ये है कि जुमला इस्मिया में जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसको हम बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। जहाँ पहला बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, ये बॉक्स है दिस, हादा दिस, जहाँ पहला बॉक्स ख़त्म होगा वहाँ पे आ जाएगा एक इस को हम ड्रॉप करेंगे। जहाँ पहला बॉक्स ख़त्म होगा वहाँ हम ऑटोमेटिकली इज़ ले आएंगे, ठीक है। आगे आके हम समझेंगे कि बॉक्स मेथड क्या है और डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल समझने की बात यह है कि जुमला इस्मिया में 2 हिस्से होते हैं, एक है सब्जेक्ट और एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मुहम्मदुन कबीरुन, मोहम्मद सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात की जा रही है, एक बॉक्स हो गया। और इंफॉर्मेशन क्या है, बिग, मोहम्मद इज़ बिग। हम क्या करेंगे, मोहम्मद जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ हम लोग एक इज़ लगा देंगे, मोहम्मद इज़ बिग, इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी तरह से हादा किताबुन में हादा दिस, और बॉक्स ख़त्म हुआ यानी सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, हम लोग वहाँ डालेंगे इज़, दिस इज़ बुक। अब दिस इज़ बुक नहीं है, ट्रांसलेशन है दिस इज़ अ बुक। अब ये आ बुक जो है ये बता रहा है कि ये इनडेफिनिट है, दिस इज़ द बुक होता तो हो जाता डेफिनिट, ख़ास बुक है। लेकिन ये आ जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये 2 पेश से आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर, किसी इस्म के ऊपर 2 पेश लगे होते हैं, उसका मतलब होता है कि वो इस्म जो है इनडेफिनिट है, कोई ख़ास नहीं है, इनडेफिनिट, ठीक है। तो समरी में 3 रूल्स हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में, ये मैं आपको दोहरा दूं एक बार और, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग लेसन कंटिन्यू करेंगे।
पहला रूल हमने बताया था कि अरबी में सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया वो है जो इसम से शुरू होता है, नाउन से शुरू होता है या प्रोनाउन से शुरू होता है, और फ़ेलिया वो है जो वर्ब से शुरू होता है। फिर हमने बताया कि नाउन्स के 3 मूड होते हैं, नॉर्मल मूड, अपसेट मूड और हैप्पी मूड। और ये मूड चेंज होते हैं किसी के एक्शन की वजह से, कोई वर्ड पहले आ जाता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अभी कि जुमला इस्मिया में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, किसके बारे में बात की जा रही है, और फिर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और हमने बताया कि इज़ और आ नहीं होता, आ और एन जो है वो हमें पता चलता है 2 पेश से, और इज़ जो है हम लगाते हैं जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वहाँ इज़ लाते हैं, और इंफॉर्मेशन उसके बाद आती है। ठीक है, ये 3 रूल्स हो गए। इसके साथ हम अब आज का लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अद्दर्सुल अव्वलु, फर्स्ट लेसन अद्दर्सुल अव्वलु, पहली लेसन है हादा बैतुन। अब देखिए, हादा बैतुन, सबसे पहली बात ये है जुमला इस्मिया, क्योंकि ये इसम से शुरू हो रहा है। हादा भी इसम है, बैतुन भी इसम है। अब दूसरी बात क्या बताई थी हमने, बॉक्सेस बनाएंगे। आप पहला बॉक्स बनाइए, हादा एक बॉक्स, बैतुन दूसरा बॉक्स। हादा दिस, बैतुन का मतलब हाउस, दिस हाउस। अब जहां पहला बॉक्स खत्म हुआ वहां आप इज लगा देंगे, दिस इज। अब क्योंकि इसके ऊपर 2 पेश लगे हुए हैं, हम कहेंगे ये इंडेफिनिट है, दिस इज अ हाउस। इसी तरह हादा मस्जिदुन, हादा दिस, मस्जिदुन मॉस्क। पहला बॉक्स खत्म हुआ तो हम इज लगाएंगे, और मस्जिदुन है तो आ लगाएंगे, दिस इज अ मॉस्क। हादा बाबुन, दिस इज अ डोर, ये दरवाज़ा है। इसी तरह हादा किताबुन, हादा मुब्तदा, किताबुन खबर। क्या करेंगे, हादा दिस, किताबुन बुक। सब्जेक्ट कहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ पे इस लगाएंगे, और किताबुन 2 पेश की वजह से हम कहेंगे दिस इज़ अ बुक। हादा कलमुन, दिस इज़ अ पेन। हादा मिफ्ताहुन, दिस इज़ अ की। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, हादा मकतबुन, एक बॉक्स, दिस इज़ अ टेबल। हादा सरीरुन, दिस इज़ अ बेड, सरीर। अच्छा, इसको याद करने के लिए आप याद रखिए कि हिंदी में शरीर कहते हैं जिस्म को, तो जिस चीज़ के ऊपर शरीर को सुलाया जाता है वो शरीर है। शरीर से आप याद रख सकते हैं शरीर, जो लोग हिंदी समझते हैं, शरीर, ठीक है ना, शरीर को लिटाने की जगह शरीर। हाजा सरीरुन, दिस इज़ अ बेड। हादा कुर्सीयुन, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स। हादा दिस, कुर्सी चेयर, और सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, यहाँ इज़ लगाया, 2 पेश लगे हुए हैं तो हमने आ लगाया। आगे चलिए, अब ये सवाल आ रहे हैं। मा हादा, मा का मतलब होता है व्हाट, और हादा का मतलब होता है दिस। व्हाट इज़ दिस, मा हादा व्हाट इज़ दिस। हादा बैतुन, अगेन एक बॉक्स दूसरा बॉक्स। आ हादा बैतुन, आ का मतलब होता है इज़, सवाल के लिए आता है ये, और अरबी में सवाल को बोलते हैं सुआल। सवाल उर्दू में और सुआल अरबी में। अहादा बैतुन, इज़ दिस अ हाउस। अहादा बैतुन, नाम, यस। हादा बैतुन, बॉक्स 1, बॉक्स 2, दिस और हाउस। जहाँ बॉक्स ख़त्म हुआ इज़ लगाएंगे, बैतुन में 2 पेश लगे हुए हैं तो ये आ लगाएंगे। जब एक पेश लगा होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या होगा, वो आएगा आगे इंशाल्लाह। मा हादा व्हाट इज़ दिस। हादा कमीसुन, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स, दिस इज़ अ शर्ट। अहादा सरीरुन, इज़ दिस अ बेड, क्या ये बेड है। शरीर शरीर याद रखिए। इज़ दिस अ बेड। ला हादा कुर्सीयुन, नो। हादा कुर्सीयुन, दिस इज़ अ चेयर।
अहादा मिफ्ताहुन, इज दिस अ की, क्या ये चाबी है? ला हादा कलमुन, नो दिस इज अ पेन। मा हाजा, व्हाट इज दिस? हादा नजमुन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टार। ठीक है, चलिए आगे। तमरीनुन, तमरीनुन, मा हादा? हादा मिफ्ताहुन। मा हादा? हादा किताबुन। मा हादा? हादा कलमुन। मा हादा? हादा बाबुन। मा हादा? हादा बैतुन। मा हादा? हादा कुर्सियुन। ठीक है, अगली एक्सरसाइज। अहादा बैतुन, ला हादा मस्जिदुन। अहादा मिफ्ताहुन, ला हादा कलमुन। अहादा कमीसुन, नअम हादा कमीसुन। अहादा नजमुन, नअम हादा नजमुन। यस दिस इज अ स्टार, यस दिस इज अ शर्ट। अगली तमरीन। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, तमरीनुन का मतलब एक्सरसाइज। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। हादा मकतबुन, हादा मस्जिदुन, दिस इज अ टेबल। मकतब, दिस इज अ मस्जिद, दिस इज अ मॉस्क। हादा कलमुन, दिस इज अ पेन। हादा सरीरुन, दिस इज अ बेड। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा कुर्सियुन, दिस इज अ चेयर। अहादा बैतुन, is this a house? La hada masjidun, no this is a masjid. Ma haza, what is this? Hada miftahun, this is a key. अब आ रहा है अगला चैप्टर, अगला पार्ट, वो है मन। अब देखिए, माँ का मतलब होता है वॉट, और ये आता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है माँ। लेकिन अगर हम इंसानों से बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे माँ अंता या माँ हाजा, हम ये कहेंगे मन, क्योंकि अब देखिए इंसानों की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे? मन, मन हाजा। और हम इंग्लिश में कहेंगे इसको हु इज दिस। ठीक है, तो मन का ट्रांसलेशन हुआ हु। मन हाजा, हु इज दिस? हादा तबीबुन, दिस इज अ डॉक्टर। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स। हादा दिस तबीबुन, डॉक्टर। बॉक्स खत्म हुआ, इज लगाया, दो पेश लगे तो आ लगाया, दिस इज अ डॉक्टर। मन हादा, हु इज दिस? हादा वलदुन, दिस इज अ बॉय। मन हादा, हु इज दिस? हादा तालिबुन, दिस इज अ स्टूडेंट। ये तालिब इल्म है, तालिब अरबी उर्दू में दोनों में तालिब इस्तेमाल होता है। हादा वलदुन, इज दिस अ बॉय? ला हादा रजुलुन, रजुल यानी मैन, वो आदमी है, ग्रोन अप मैन है। ला हादा रजुलुन, हादा एक बॉक्स, रजुलुन दूसरा बॉक्स, दिस इज अ मैन। ठीक है, आगे चलें। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा मस्जिदुन, दिस इज अ मस्जिद। मन हादा, हादा ताजिरुन। अब देखिए आपको फर्क सिखा रहे हैं वो माँ और मन में, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ थी तो हमने कहा मा हाजा, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मस्जिद। अब क्योंकि ताजिर इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो हम क्या कह रहे हैं? मन हाजा, हु इज दिस? हादा ताजिरुन, दिस इज अ बिजनेसमैन, ताजिर है, ट्रेडर है या बिजनेसमैन है। हादा कल्बुन, दिस इज अ डॉग। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स। हादा कल्बुन। हादा कल्बुन, इज दिस अ डॉग? ला हादा कित्तुन, नहीं ये बिल्ला है, दिस इज अ कैट। हादा हिमारुन, दिस इज अ डोंकी। हादा हिमारुन, इज दिस अ डोंकी? ला हादा हिसानुन, हिसानुन यानी घोड़ा, हॉर्स। नो दिस इज अ हॉर्स। हादा एक बॉक्स, जहाँ खत्म हुआ इज आएगा, दो पेश की वजह से आ आएगा, दिस इज अ हॉर्स। वमा हाजा, एंड व्हाट इज दिस? हादा जमलुन, दिस इज अ कैमल। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा दीकुन, दिस इज अ रूस्टर। मन हाजा, हु इज दिस? हादा मुदर्रिसुन, दिस इज अ टीचर। अहादा कमीसुन, इज दिस अ शर्ट? ला हादा मिंदीलुन, दिस इज अ टिश्यू। मिंदील का मतलब, कमीज का मतलब होगा शर्ट, और मिंदील का मतलब होगा टिश्यू या हैंडकरचीफ, रुमाल, रुमाल या टिश्यू, नैपकिन।
ٹھیک ہے. اچھا اب ریڈ اینڈ رائٹ ہے, تھوڑی پریکٹس کرا رہے ہیں. ما ہاذا, واٹ از دس. ہاذا قلم, دس از اے پین. ہاذا کلب, دس از اے ڈاگ. من ہاذا, ہو از دس. ہاذا طبیب, دس از اے ڈاکٹر. ہاذا جمل, دس از اے camel. ہاذا کلب, از دس اے dog. لا هذا قط, no this is a cat. هذا ديك, is this a rooster. نعم, yes. هذا حصان, is this a horse. لا هذا حمار, no this is a donkey. هذا منديل, this is a handkerchief, this is a tissue. هذا ولد, is this a boy. نعم, yes. من هذا, who is this. هذا رجل, هذا رجل يعني this is a man. ٹھیک ہے, میں نے تھوڑا سا تیز کرایا اس لیسن کو کیونکہ بہت سلو جائیں گے تو بورنگ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آگے جا کے جب تھوڑی سی کانسیپٹ مشکل ہوں گے تو ہم اپنی پیس کو سلو کر لیں گے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ نیچے کامنٹس میں کیجیے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.